Hello students, from today I am starting your class 6 science syllabus. In this we are going to start with your first chapter, that is your sources of food. Okay, so I have divided your chapter in 3 parts. I will be taking you 3 lectures for this chapter. In this lecture we are going to study for the what is food, what are nutrients, what is nutrition, and what are the functions of food. Okay, so first, what is food? Food is the fuel that provides us energy to do our vital activities. What is food? Food is the fuel. What do you mean by fuel? Fuel that gives us energy. Similar, जैसे कि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, that works as an fuel. Okay, so आपकी गाड़ी तब तक नहीं चलेगी, your car will not work until and unless it is getting sufficient fuel. Similarly, your body requires fuel that gives the energy and we do our vital activities. Okay, so जैसे गाड़ी में हमारे पेट्रोल हमारा फ्यूल का काम करता है, हमारी बॉडी में हमें जो भी काम करना होता है उसके लिए हमें एनर्जी कौन देता है? फूड देता है. जैसे आप बहुत टाइम के लिए भूखे हो तो आपको ऐसा नहीं लगता आपका ब्रेन काम नहीं करता, आपको और गुस्सा आने लगता है. सो ऑल दीज आर क्योंकि आपकी बॉडी में सफिशिएंट उस समय एनर्जी नहीं है. ओके, सो फॉर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी यू रिक्वायर प्रॉपर फूड. Okay, so what is food? Food is the fuel that provides us energy to do our vital activities. वो fuel है जो energy provide करता है किस लिए? हमें vital activities के लिए. Okay, so next, what are nutrients? Nutrients are the chemical substances present in our food are called nutrients. Our food contains chemicals, those are known as nutrients. And इट इज़ नॉट लाइक सिमिलर सिंगल केमिकल के आपने खाना खाया वो एक सिंगल केमिकल की तरह आपकी बॉडी में गया, एनर्जी आपको प्रोवाइड किया. नो, एवरी सिंगल फूड इज़ प्रोवाइडिंग अस अ डिफरेंट न्यूट्रिएंट. ओके, डिफरेंट केमिकल दैट इज़ नोन एज न्यूट्रिएंट. जैसे कि आप एक रेफरेंस में लीजिए, आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ कार होती हैं. आपको इतना नॉलेज हो, आपकी पेट्रोल कार्स होती हैं, डीजल कार होती हैं जिसमें LPG, CNG, इथेनॉल, बायोडीजल. So different kind of fuels are present for different kind of vehicles. Similarly, हमें भी जो बॉडी में काम होते हैं, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं एंड दोज आर डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स. सो chemical substances present in our food, these chemicals are known as nutrients. Nutrients are the chemical substances. Okay, similarly like see, अब ये प्लाटर में हमें दिख रहा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ फूड है. यू कैन सी फिश हमें डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, मिल्क हमें डिफरेंट प्रोवाइड करेगा, योर फ्रूट्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद अ डिफरेंट न्यूट्रिएंट, योर मिल्क, बटर, ब्रेड, everything that you eat provides a different kind of nutrient. Okay, so food is what? It is a combination of different kind of nutrients, and those nutrients are what? These are the chemical substances. Okay, okay, what is nutrition? We have studied for the food. Food is the fuel that provides us energy, and food contains what? It contains your nutrients. Those are the chemicals that are present in the food which our body uses to get what? To get the energy. Now what is nutrition? The process by which an organism takes in food. First part of your definition, understand this. Nutrition क्या होता है? by which the process by which an organism takes in food मतलब वो अपनी बॉडी में वो फूड कैसे लेता है. फर्स्ट वी सी ए नॉर्मल ह्यूमन्स आप देखें तो आप अपने हैंड का यूज़ करते हैं, आप अपने माउथ से फूड ईट करते हैं, यू डू नॉट यूज़ योर फुट. ओके, सो एक सिंपल पैटर्न है, आप यू यूज़ योर हैंड टू ईट दी फूड. अगर हम अब एक डिफरेंट देखें, एग्जाम्पल फ्रॉग, व्हाट द फ्रॉग इज डूइंग? इट इज़ कैचिंग द प्रे विद द हेल्प ऑफ इज लॉन्ग स्टिकी टंग. उसके पास एक लॉन्ग स्टिकी टंग होती है जिससे वो इंसेक्ट्स को कैच कर लेता है. अब क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? डू वी डू दी सेम थिंग? नहीं, हमारे पास उतनी लंबी टंग नहीं है. सो यहाँ पे मोड ऑफ टेकिंग इन फूड डिफरेंट हो गया.
सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में टेकिंग फूड डिफरेंट होता है. जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लें, यहाँ पे क्या है, एक मॉस्किटो बना हुआ है. मॉस्किटो क्या कर रहा है, अपने प्रोबॉप्सिस, ये जिसे सक करता है इसको हम लोग प्रोबॉप्सिस कहते हैं. सो ये आपकी स्किन में सक करके आपके ब्लड को सक करता है. ठीक है. अब अच्छा, एक जनरल कॉन्सेप्ट है दैट यू मस्ट बी जनरली नोइंग कि मॉस्किटोज बाइट. ये से ना कि मॉस्किटो बाइट कर रहे हैं, बट इनके पास तो टीथ होते नहीं है. हाउ डू दे बाइट? The biting concept is when they insert this proboscis in your skin, it produces a itchy type of feeling. So वो जो itchiness होती है that is felt as biting. वरना तो ये मतलब biting नहीं करते हैं. It insert the proboscis. अब देखो, अच्छा ये, अच्छा इनके proboscis क्यों होते हैं, टीथ क्यों नहीं होते हैं? देखो, the kind of food you are eating. अच्छा, आपको अगर कोल्ड ड्रिंक पीनी है, does you require your teeth? अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी, what you will be requiring? You will be requiring a straw. So the food that the mosquitoes require, what they need the blood. So blood क्या है, एक liquid है. So what they are requiring, they require a straw type of structure to eat. Yes, to get the food inside their body. That is what we are studying, nutrition, the process by which the organism takes in food. So how does this mosquito is getting the food? With the help of a straw like tube like structure known as proboscis. किस लिए? क्योंकि इन्हें लिक्विड फूड लेना है. सो यहाँ पे हमारा फ्रॉग से अलग हो गया, ह्यूमंस से अलग हो गया. ठीक है. सो फर्स्ट इज प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड. ये हमें समझ में आ गया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ डिफरेंट होती है. एंड यूटिलाइजेस फॉर एनर्जी. यही फूड हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. द फर्स्ट हाउ द ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड एंड देन हाउ इट इज़ यूटिलाइजिंग इट फॉर द एनर्जी. क्लियर? डिफरेंट काइंड ऑफ nutrients are providing different kind of energies. Okay, so अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन क्या होता है हमारा, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड एंड यूटिलाइजेस फॉर एनर्जी. दिस इज न्यूट्रिशन. क्लियर हो गया? नाउ वी हैव अंडरस्टूड फूड. फूड इज द फ्यूल दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी. सेकेंड, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन अ फूड. Okay, these are the chemicals which provide us the energy. Okay, these are different. Okay, then we have studied nutrition. क्या होता है? Nutrition is the process by which an organism takes in food. These are varied in different organism as we have seen the 3 examples. Okay, and utilizes for energy. This whole process until the food is taken inside the body and energy is given out. This whole process is known as what? It is nutrition. Okay, now what are the functions of food? Food करता क्या है? पहली चीज़, it provides us the energy. This we have studied in the definition also. It provides us the energy. Energy for what? To do our vital activities. Okay, then it helps to protect us from the diseases. सिंपलर आप अपने रेगुलर में भी देखते हैं, आपके पेरेंट्स कहते होंगे यू शुड हैड हेल्दी फ्रूट्स, आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, यू शुड ईट पल्सेस, यू शुड ईट दाल. आपको ये सारी चीज़ें क्यों खानी चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर आप हेल्दी फूड नहीं लेंगे तो आपको डिसीजेस अटैक कर लेंगी. ओके, यू विल गेट डिसीज्ड. ओके, सो फंक्शन ऑफ फूड फर्स्ट क्या है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, protection from the diseases, because if we are not taking proper food we will get attacked by different kind of diseases. Okay, then it helps to repair worn out cells. worn out cells को repair करता है. Okay, मीन्स अगर आपको कहीं पे चोट लग जाती है, कहीं पे वो हो जाता है, तो आपको कहना है डॉक्टर के पास आप जाते हो तो क्या कहते हैं? हेल्दी खाना खाइए. आप एक जनरल से एग्जांपल, अगर आप कहीं पे आपके मतलब कोई हड्डी टूट जाती है, आपको फ्रैक्चर हो जाता है, व्हाट डू आर क्या कहते हैं, आपको क्या बोला जाता है खाने के लिए? आपको मिल्क कंज्यूम करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इट इज़ प्रोवाइडिंग द कैल्शियम. वो हमें कैल्शियम प्रोवाइड करता है. क्यों? क्योंकि वो रिक्वायर्ड है हमारी बोन के लिए. सो क्या करता है फूड यहाँ पे? क्या कर रहा है? जो हम मिल्क लेंगे वो क्या करेगा? रिपेयर करेगा जाके हमारे फ्रैक्चर सेल्स, जो हमारी बोन सेल्स फ्रैक्चर हो गई हैं उनको क्या करेगा? रिपेयर करेगा. ओके, सो
3 मेजर फंक्शंस हमारे फूड के क्या हो गए। फर्स्ट हम फिगर्स से देखते हैं। फर्स्ट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ करनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी में। जैसे कार को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, सिमिलरली हमें भी फ्यूल चाहिए। प्रोटेक्शन चाहिए डिसीज़ से, नहीं तो हम लोग डॉक्टर के पास ऐसी हालत में पहुँचेंगे। ओके हम लोग को क्या कहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ क्या कहते हैं न्यूट्रिशन चाहिए, क्या कहते हैं जो न्यूट्रिएंट्स आपके कंटेंड हो फूड में वो हमें चाहिए, जिससे कि हमें डिसीज़ ना हो। देन अब मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपको रिपेयर करता है वो सेल्स का, आपको कोई भी चोट लग जाती है तो फूड क्या करता है, रिपेयरिंग का फंक्शन करता है। क्लियर एवरीवन? सो वी हैव सीन, let us just our lecture. We have started with what is food. What is food? Food is the fuel that provides us energy. किस लिए? to do our vital activities. Fuel है, energy provide करता है vital activities के लिए. Clear? What are nutrients? The chemical substances present in our food are called nutrients. जो chemicals हमारी बॉडी में, chemical substances हमारे food में present होते हैं, जो हमें energy provide करते हैं, these are known as nutrients. ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? The process by which an organism takes in food. Okay, how the organism is taking the food inside their body and utilizes for energy. वो फूड कैसे हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. ओके सो वी हैव सीन 3 different examples how the organism is taking in the food. Then the functions of food. What are the functions of food? It provides us energy. Yes, it provides us protection from the diseases and it repair our worn out cells. Clear everyone? Thank you class. This was the first part of your sources of food. In the second part we are going to study for the variety of food, ingredients of food, sources of food. Okay? Thank you class.